जब जब अगली अगली बार बार हरियाणा हरियाणा आऊंगा आऊंगा देसी देसी घी बोलकर का इस देसी की इस इस देसी देसी की फैन या या दुनिया दुनिया होरी होरी रे वाह जी वाह। भैंस क्या होती है? What do you understand by, if in Hindi I'll called bhais, in buffalo? इंडिया में जो ज़्यादातर गरीब घर होते हैं जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं होते हैं, क्या अमेरिका में भी ऐसे हैं? अच्छा Not only here at JD School International, but also in Haryana, visiting the towns and the villages and International school, for any reason. अच्छा best Amul ice cream. Amul ice cream, that is Amul. लिखने बाद सादर स्कन विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँ कि आज मैं पहुँचा हूँ जेडी इंटरनेशनल स्कूल में, और अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा जो अमेरिका से है, यूएसए से भाई जो यहाँ पर टीचर आए हुए हैं, और यहाँ पर भी जो इंग्लिश मीडियम में जो बच्चों को जो पढ़ाते हैं, एक हफ्ते के लिए यहाँ पर वो आए थे और आज यहाँ से वो रवाना हो रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ़िलहाल आप देख सकते हैं अब यहाँ पर है अंदर बातें यहाँ पर बैठे और बात कर रहे हैं, और हम जानना चाहें कि यहाँ पर भी जो जेडी इंटरनेशनल स्कूल में यहाँ पर पहुँचे हैं, जो बच्चों में उनमें किस प्रकार से है कम्युनिकेशन का रहा, तो हम फिलहाल हम बात करना चाहेंगे। अंदर यहाँ पर चलते हैं और अंदर चल करके हम बात करना चाहेंगे, जो कि भी यूएसए अमेरिका से है, जो यहाँ पर पढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, बात यहाँ पर करना चाहेंगे। सर राम राम। राम राम जी। राम राम। हाउ आर यू सर? Doing well, thank you. थैंक यू जी। जानना चाहूँगा आपसे मैं, जो आप जेडी इंटरनेशनल स्कूल में पहुँचे तो यहाँ पर आने के बाद आपको कैसा लगा? As you reach to the JD International School, now what is your feel and what do you feel like that you want to share with us? My feel right now is it's a little bit too hot, but the school is very nice. जी सर, जो अमेरिका के स्कूल होते हैं, जो यूएसए के स्कूल होते हैं, और यहाँ पर आप पहुँचे इंडिया के स्कूल में, यहाँ पर पहुँचे जेडी इंटरनेशनल स्कूल में, तो वहाँ के स्कूलों में और यहाँ के स्कूलों में कितना अंतर है? What is the difference between the schools in your America and the schools in India, especially that is a JD International School? What do you find the difference between the two? One of the biggest differences probably is that most all of the schools in America are public schools. So they're publicly funded with tax dollars. So therefore there's there's a standard of teaching that's required nationally. Versus India, where most of them are private schools, there's a little bit more flexibility, I think, in the teaching to be able to have your teachers work a certain way or have certain curriculum. Of course, the standards will be similar, but because of that, I think the teaching approaches are also very different. सर मैं जानना चाहूँगा, जो अमेरिका के स्कूल होते हैं और जो इंडिया स्कूल में, वहाँ के स्कूल अच्छे हैं या फिर आपको यहाँ के जो स्कूल अच्छे देखने को मिले हैं? Which schools that you find that is a better one, that is in America or in India, that is called best or the better practices where you feel good? One, that's a difficult question. I think it's tricky. But I think the best answer is we try not to identify what is good and what is bad. We simply say something is different. So the way they do something in America, it's not good or bad, it's just different. The way that they do something in India, it's not good or bad, it's just different. Different, maybe some people would view as good or bad, but I try to view it as just different. Is that a safe answer? I think that's a safe answer. And that's the right answer. Of course, ये कहना चाह रहे हैं कि स्कूल सभी अच्छे होते हैं, सभी स्कूल्स में टीचिंग मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं और वो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो अच्छे या बुरे हैं। So in our country also and in America also, the schools, they have a different practices, but both the sides, the schools are having, that is a common thing, that is a part is that is giving teaching. सभी पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। देखिए मैडम जी, आप तो यहाँ के हैं, हमारी जो भाषा है हिंदी भाषा है, बच्चे समझ लेते हैं, लेकिन सर यूएसए से यहाँ पर आए हुए थे जो बच्चे यहाँ के थे जेडी इंटर स्कूल के, क्या उनको समझ आ रहे थे सर की? बिल्कुल, हम जैसा कि सभी हिंदी भाषा को बहुत आसानी से समझ लेते हैं और हिंदी भाषा में हम अपने आप को व्यक्त कर पाते हैं, एक्सप्रेशन इज़ वेरी ईजी।
सिर्फ एक ये छोटी सी चीज़ है, हमको हिंदी में अपने आप को व्यक्त करना आसान है। इन द सेम वे अमेरिकन पीपल दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन इंग्लिश। लेकिन जब अभी दोनों जब एक ही जगह जब मिलते हैं तो कुछ चीज़ें बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं, कुछ चीज़ें हम थोड़ी देर के लिए सोच के समझ के उनको लेते हैं और नेक्स्ट टाइम फिर हम उसे बोलने की कोशिश करते हैं। तो हमारे बच्चों ने बहुत एक अच्छा जो सीखा है वो यही है, कुछ ऐसे वोकेबलरी, कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे सेंटेंसेस और कुछ ऐसी बातें जो इनसे सीख के ना अब वो क्लास में भी बच्चों के साथ में। सर यहाँ पर जेडी इंटरनेशनल स्कूल में पहुँचे तो यहाँ के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है और जैसे कि आगे स्टाफ है, तो उनसे सर ने यहाँ पर क्या कुछ सीखा? Okay, as you reach here to the school, what you have learned from that is the staff members of our school. One thing I love most about the Indian culture and tradition is their generosity, their willingness, not only here at the school, but we visited some towns and villages and being inside different people's homes, just the love and the generosity of people here. I feel like that's something that many countries are missing, and India still has paka, like good, perfect. आप इसकी हिंदी बनाई जो सर ने हाँ, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो उनको सबसे अच्छा लगा, जो पूरे वर्ल्ड में भी अगर शायद हम जब घूमते हैं तो हम यही एक हमारी कंट्री है जिसमें आके रुक जाते हैं कि लोगों का दूसरों को रिस्पेक्ट देना बहुत बड़ी बात है। और हर वक्त जैसे अगर मैं अपनी क्लास ले रही हूँ, if I am a very good teacher somewhere else, maybe I am so rude also sometimes, no, I'll not give my class. लेकिन यहाँ पर टीचर है, अपनी क्लास में बुलाना है, हेल्प करना है, सो दैट इज़ पूरी तरीके की मदद देना। कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पर कि टीचर मदद नहीं कर रहा। टीचर खुद भी समझ रहा है, खुद बहुत सारी चीज़ों को सीख रहा है और कोशिश कर रहा है कि जो हमारे बच्चे बोल रहे हैं, जो टीचर बोलना चाहती है, वो इनको भी हम समझा सकें। यूएसए में उनका क्या जो पहनावा क्या है, उनकी जो बेस्ट खाने की चीज़ें क्या है, जैसे अपने हरियाणा में देसी का चूरमा होता है, तो उसके बारे में जानना है आप मुझसे। So, Mr. Lash, that is, as you know, in Haryana, especially in this season also, so many good things will be there, like ghevar. It's one of the sweet. Yes. Okay. So, what is in your country, that is in your place, particularly from where you are residing, that having some good food items which you like, the type of attire that you want to wear, they want to know. In my hometown right now, USA, it doesn't have many cycles for growing products. So because of that, we have one big cycle. So we plant all of our produce in April, May, June. And then all of the produce and the fruits and the vegetables, they'll all be done between kind of August, September, October. So as I'm preparing to go home, fresh fruits and vegetables right now are my favorite part of the year. But same fresh fruits and vegetables here as in India. Tomato, cucumber, squash, corn, potatoes. Those are all the things that are about to come on. Once we eat them fresh, everything else we have to can or bottle or freeze because then we'll have no produce for the next 6 months. सर ने ये बताया, बिल्कुल जैसे हमारी कंट्री के अंदर हम पसंद करते हैं कि हम बिल्कुल ताज़ा सब्ज़ियाँ, ताज़ा फल जो है वो खाएं। इनको भी ताज़ी सब्ज़ियाँ और फल खाना बहुत अच्छा लगता है और इस समय इनकी कंट्री में बहुत ही फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिल जाते हैं। तो इवन हमारे जैसे यहाँ पे हम घिया खाते हैं, कद्दू खाते हैं, सो ये उन चीज़ों को भी बहुत पसंद करते हैं और वहाँ पर भी ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन सिर्फ इसी सीज़न में मिलती हैं। सो पूरा सीज़न जो है वो क्रॉपिंग होने के बाद में उनको इस महीने में फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल होते हैं। भैंस क्या होती है? What do you understand by, if in Hindi I'll call bhais, in buffalo? We have cow. 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 जानते हैं Cow. My- Yes, of course. They know. My grandfather's a dairy farmer. Yes. So year round, we have milk, cheese, butter, ice cream, curd. Year round, always. तो उनके जो दादाजी हैं उनके पास में भी एक डेयरी फार्म हुआ करता था, तो ही इज़ अवेयर ऑफ दैट इज़ कि भी क्या चीज़ होती है, काऊ क्या है, बफलो क्या है, मिल्किंग क्या है, और चीज़ बनाना, इवन दैट इज़ अ कर्ड, डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट इज़ फ्रॉम द कर्ड। देखिए इंडिया में जो ज़्यादातर गरीब घर होते हैं जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं होते हैं, क्या अमेरिका में भी ऐसे हैं?
want to know that is a poverty in India that you have seen the people they don't have, that is a homeless people in India. So the same similarly that is it is there in America also. नहीं नहीं नहीं, तो वहाँ पे सभी अच्छे परिवार से होते हैं। There it is all belong to the good families that is a financially sound. Also no नहीं नहीं but there is a difference between having a home and having daily food and living on the street. But in India, there's more than 1 billion people. Where are they going to go? In the United States, there's programs in place at least to allow someone some shelter, at least a place to go. Not everyone, but if someone chooses, everyone can find some place to live. Government provides that. Yeah, government will help provide. So बहुत अच्छा तरीका है, वहाँ पे सरकार की तरफ से ही सुविधा दी जाती है जो जिनके पास में घर नहीं है और उनके पास में 2 वक्त के खाने का नहीं है, फाइनेंशियली वो वीक हैं, तो सरकार वहाँ पे कई सारे ऐसे प्रोग्राम उनके लिए चलाती है जिसके अंतर्गत उनको मदद मिल जाती है। But also the government does not 100% provide. The government actually relies very heavy on private institutions to give. Churches, publicly funded organizations, religious organizations, other things like that for individuals to give to provide the needs. A majority of the help comes from private organizations. जैसे हमारी कंट्री में भी होता है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जब सभी अपना टैक्स भी पे करते हैं और जितनी हो सके उतना डोनेशन भी करते हैं, उसी तरीके से अमेरिका में भी जो है जितनी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस द पीपल दोज हु आर एंगेज्ड देयर दे हैव देयर ओन एक अपना एम्प्लॉयमेंट है, बहुत बड़ा काम है, तो वो लोग इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट को मदद करते हैं। जब सर यहाँ से जेडी स्कूल से जाएंगे यूएसए में, वहाँ पर जाने के बाद क्या इनको जेडी इंडियन स्कूल की याद आएगी? ओके, as you leave from here, that is, do you find that is after reaching to your place, your native place, do you remember JD International School for any reason? For so many reasons. We've had a very positive experience, not only here at JD School International, but also in Haryana. Visiting the towns and the villages and meeting the people, it's been a very welcoming, very positive experience. I think my children, my 4 children I brought with me, I think their life will be changed because of their experience. जो यहाँ पर उनको सबसे बेस्ट खाने की क्या लगी हरियाणा में? Okay, what is the best favorite food that you have enjoyed here? In Haryana specifically or in India? In Haryana. In Haryana. Best. The sweets are too sweet. मिठाई के बारे में? मिठाई. So sweet. But it's not Haryana specifically, but Amul ice cream. Amul ice cream, that is Amul ice cream. Amul is so creamy. It's so thick. It's rich. He is right. But I love ice cream. But also one thing I actually enjoy much of Haryana is vegetarian. Which my family at first, because in US veg and non-veg both. But now that we're here, we enjoy vegetarian just fine. ये कह रहे हैं कि हमारे जैसे देश में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरीके का खाना होता है, लेकिन यहाँ आके उन्होंने वेजिटेरियन खाने को बहुत एंजॉय किया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, द डिशेस मेड अप ऑफ राइस, पराठास, चपातीज, एवरीथिंग, दाल मखनी, टिक्का मसाला। हिंदी बोलने लगे सर अब हिंदी बोलने लगे हैं। आलू मटर। बहुत आपको जान के लगेगा कि इनके पास में भी एक अपना एक इंडियन आउटलेट है वहाँ पे, जिस पे ये खुद कुकिंग भी करते हैं और दे आर मेकिंग दैट की भी बहुत सारे वहाँ पे हिंदुस्तानी खाना खाने भी आते हैं। सो इन्हें काफ़ी नाम पता है खानों के, और जो स्टूडेंट्स आए हमारे साथ में वो भी हिंदुस्तानी खाने से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। जी मैडम जी, आपने से पूछना है जो अपनी हरियाणवी भाषा है उसको बोलना है, तो उनको बोलना कि जब मैं यहाँ पर अगली बार आऊँगा तो देसी का चूरमा खाऊँगा, तो प्लीज़। अच्छा, कैन यू स्पीक इट इन हरियाणवी लाइक नेक्स्ट, अगली बार जब मैं आऊँगा? हरियाणवी नहीं, अगली प्लीज ट्राई। अगली बार जब मैं यहाँ आऊँगा, जब मैं अगली बार
जब Jab, अगली ugly, बार bar, हरियाणा Haryana, आऊंगा angwa, देसी desi, घी ghee, का ka, चूरमा churma, खाऊंगा kangwa. जी मेरे को थोड़ी ही नहीं मालूम मेरे को बातें that बता is दी आंटी actually that is in Haryana. It is called to be that is a Haryanvi. pure cow ghee. Oh yeah. Okay, so that is very very nutritious And famous, right? Yeah, famous. This is very good for your bones also. So उसमें चपाती को मैश कर दिया जाता है बहुत अच्छे से. It is, and then some sweet like sugar is to be added in. Yeah, That is and then fried. this is called to be churma, and churma is very very famous. Churma is very famous. Early in the morning, if we'll give to our children, they are eating, and it is full of calories. And sweet. Sweet, full of calories and sweet. जी तो देखिए आपको हरियाणी सॉन्ग हमारे देसी देसी ना बोला कर छोरी रहे इस देसी की फैन छोरी हो रही रहे आपको ये बोलना है प्लीज नहीं, that is not possible. क्या है? मैं इसको एक शब्द बिल्कुल उसको बोलता हूँ। देसी 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 ना बोला कर देसी देसी ना बोला कर. नेसे देसी देसी ना बोला कर. ना बोला कर. ना बोला कर. क्या? सर means वो देसी what does it mean? I'll tell you. That is whenever say desi, it is called to be that is a local. Okay, that Desi, belongs. That is desi. you particularly belong to. That is this place. That is called to be local place or the desi place. देसी ना बोला कर. ना बोला कर. देसी 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 ना बोला कर. बोला कर इस देसी की इस देसी देसी की फैन फैन या दुनिया दुनिया हो रही रे. वाह जी वाह। तो जी इस दुनिया मतलब the whole world is that is a fan or the fame for that is a क्या बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा फेमस होती है. जो जेड स्कूल में रहे जो बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया तो उनको यहाँ पर किस प्रकार का यहाँ पर उनका एक्सपीरियंस था Okay, that is want to know about that is how's your expectation, you're feeling like going to the classes of the students and teaching them. After teaching, what do you feel? I want to say something about the students with whom that you have spent time for the teaching. That's probably been my favorite part. I love the food, I love the people, I love visiting, but my favorite is being in the classroom with the students. They're very eager, they're very ambitious. They're very interested in improving their life and the life of their family so that they can give back, I think, to India. सर ने ये बोला कि क्लास में जाके उनको बहुत अच्छा लगा बच्चों के बीच में क्योंकि उन्होंने देखा कि जो बच्चे हैं वो हर जवाब देने के लिए इंटरेक्शन करने के लिए आपस में बातचीत उनसे आप कुछ भी पूछते हैं तो वो रेडी हैं आपसे बात करने के लिए आपको बताने के लिए और लर्निंग के लिए. तो उनके लिए बड़ा आसान हुआ उन बच्चों को अपनी बातों को समझाना और सिखाना. तो मैडम जी आप भी है लास्ट में क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वक्त जो कंचन टीवी न्यूज़ और जेड पर जो लोग ये तस्वीर देख पा रहे हैं तो आप उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जेडी इंटरनेशनल स्कूल ने एक बहुत अच्छी पहल करी है और इस पहल में हमारे स्कूल के बच्चों ने हमारे स्टाफ मेंबर्स ने और हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत कोऑपरेट किया एंड हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल टीचर एंड स्टूडेंट्स आए और हम सबको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला. मैडम जी मैं एक बात आपसे पूछना भूल गया जो सर यहाँ पर आए थे उनका मेन सब्जेक्ट था क्या? सर का मेन सब्जेक्ट इंग्लिश और साइड बाय साइड मोटिवेशनल स्पीकर है ये. सो मोटिवेशनल स्पीकर आप समझते हैं कि हर स्कूल में काउंसलिंग के लिए काम आता है. सो 2 सब्जेक्ट हो गए इनके इंग्लिश एंड द मोटिवेशनल. तो सर यहाँ पर जो पहुँचे थे फिर 1 हफ्ते के लिए आए थे फिर लगातार यहीं पर रहने वाले? नहीं, ये यहाँ पर सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आए हैं और जल्दी कोशिश करेंगे कि हम साल में एक बार और ऐसा ही प्रोग्राम कर सकें. सो अब ये यहाँ से जाएंगे आगरा और वहाँ पे ये हिस्टोरिकल प्लेसेस को घूमना चाहेंगे लाइक हमारे देश का ताजमहल. सर लास्ट में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? What do you say by summing up each and everything can conclude out this? I think to summarize, this experience at JD International School has been something that our family has been searching for many years. We've been looking for an opportunity to come to India and meet people and see the places to help build relationships
that I hope will last for many, many years. योर नेम सर? My name is Lars Lambertson. थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू। तो फिलहाल देख सकते हैं हमारे साथ मुझे यूएसए से जो यहाँ पर टीचर जो आए हुए थे, और मैडम मैं जानना चाहूँगा जो आप यहाँ पर है, आपकी क्या कुछ भूमिका यहाँ पर रहती है? स्कूल में प्रिंसिपल होने की भूमिका सबसे बड़ी तो यही है, क्लास स्कूल में क्या चल रहा है, स्कूल में क्या, क्लास में हर बच्चे के बारे में, हर टीचर के बारे में, वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पर जब ये आए हैं तो इनको हमें क्लासेस देनी है, और कब मेरे टीचर्स इनसे ट्रेनिंग लेंगे, तो इन सभी के बारे में जो है वो पहले से ही एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है। तो उस प्रोग्राम को बनाना और एक सक्सेसफुली उस प्रोग्राम को चलाना। थैंक यू मैडम। थैंक यू। तो फिलहाल देखते हैं जो तस्वीरें हैं, इस आप है जेडी इंटरनेशनल स्कूल से आप ये देख पा रहे थे, और फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीरों में। अभी फिलहाल देख सकते हैं भी जो यूएसए से जो यहाँ पर है पढ़ाने के लिए भी 1 हफ्ते के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। तो जो मेरे सवाल थे, जो मैडम से हमने सवाल किए, और मैडम से मैं हिंदी में सवाल किए, तो मैडम से है इंग्लिश में सवाल किए, तो मतलब जो इंग्लिश में सवाल उनको आपको हिंदी में सुनने को मिला। तो साथ ही जो लाइव तस्वीरें हैं आप ये जो जेडी नेशनल स्कूल से देख पा रहे हैं, तो आप इन तस्वीरों को है भी लगातार आप शेयर करें। तो हम फिर हाजिर हो किसी नई अपडेट है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।